Morning students, this is your Sita ma'am again in front of you with the chapter Changing Trend in Occupation. We have done occupations of villagers, migration of farmers to cities and towns, mechanization of agriculture, Operation Flood, where I explained you all about Dr. Kurian, how he had made India one of the largest producer of milk in the world because of his contribution. Now, moving on, changes in occupation. What changes have taken place? Let's study. So, let's have a look at the occupation in olden times. The king's palaces provided occupation to darbans or guards, clerks, masons, tailor, dyer, weavers, soldiers, singers, cooks, etc. The farmers provided grain, vegetable, fruits, and the king had many people to help him in administration and maintenance of the law. This was how people used to do in olden times. They were darbans, they were masons, clerks, and all. But with the change of time, people have also changed the scenario. See here, new occupations have uh, changed the scenario entirely different. Now, many new occupations have come up and become popular in cities, especially. They are related to industry, trade, transport, communication, education, health services, fashion, insurance, banking. So, these types of new occupations are coming up. So, broadly, occupations are divided into two parts. The first part, I would say, is professional, and the second part is non-professional. So occupations are usually divided with professional occupation and non-professional occupation. So here, see, professional occupations are those who study hard. They have to at least study for 3 to 4 years and have to get a degree, then only they can become a professionals. So they are like scientists, engineers, doctors, teachers, designers, architect, filmmakers, making marketing experts. So these people have increased nowadays, because nowadays people are requiring those people in occupation required, especially those who have professional attitude or professional background, especially professional qualifications are nowadays more in demand. So these experts have been increased many folds. So here आप ये बोल सकते हैं कि जो बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे डिग्री हासिल कर लेते हैं, या डिग्री हासिल करने के बाद पैसा कमाते हैं या उनकी नौकरियां लगती है, तो दे बिकम प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन. नॉन प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आर अगेन डिवाइडेड इनटू three parts. See here, non-professional occupations, especially these non-professional occupations are can be classified as skilled labor, and as can be classified as semi-skilled labors, and also can be classified as semi unskilled labors. So who are these skilled labors? Skilled means they know something to do, they at least have taken a learning or taken a training, then they have become occupants. So they are tailors, carpenters, plumbers, these people. And semi-skilled means they know little bit, and doing they have become experts. So they are bakers, cleaners, washermen. And unskilled, they don't know anything. Okay, they don't know any type of job, they don't have an idea, they don't have any training, they don't have any qualification, but they are still doing the job. They are specially workers at construction site, coolies at reporters at railway station and bus stands. So these people are unskilled labors. So usually we have skilled labors in society, semi-skilled labors and unskilled labors. So without them, our job, our work cannot be done. So only professional peoples are not required. We need these type of unprofessional peoples also to complete our job. Now coming to dignity of labor, all types of works are necessary in society. We must request all of them, respect all of them. No work is superior or inferior, work is work itself, and it is absolutely wrong to consider any work good or bad. The work itself is dignity. Father of nation Mahatma Gandhi used to do all types of work on his own, and even cleaning the toilet. So by all means, all types of works are required.
देखिए, समाज में हर प्रकार के काम की ज़रूरत है। सिर्फ पढ़े लिखे लोगों को ही काम मिले ऐसा नहीं है। समाज में जो कम पढ़े लिखे होते हैं या जिनको बहुत कम नॉलेज है पढ़ाई की, या कोई ट्रेनिंग है, या कोई प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है, या प्रोफेशनल उनके पास डिग्रियां नहीं हैं, तो भी उनको जॉब की ज़रूरत होती है। हमको हर प्रकार के जॉब वाले चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पढ़े लिखे ही लोग समाज चलाते हैं। तो कोई काम छोटा, सुपीरियर और बड़ा नहीं होता। हर काम की एक रिस्पेक्ट होती है। मैं हमेशा क्लास में बोलती हूँ कि क्लास में कि आपको हमेशा इज्जत वाला काम वही होता है जो इज्जत वाला, जो मेहनत करके पसीना बहा कर कमाया जाए। अगर हम बिना मेहनत किए, बिना पसीना बहाए अगर कोई चीज़ कमाई करते हैं तो वो है डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं हो सकता। डिग्निटी ऑफ लेबर वही है जो पैसा मेहनत करके कमाए। चाहे आप नाली साफ़ कर रहे हैं, चाहे आप झाड़ू लगाकर, झाड़ू पोछा करके काम कर रहे हैं, चाहे आप कोई भी तरह का काम कर रहे हैं, जैसे बिल्डिंग बना रहे हैं, या धूल मिट्टी वगैरह रोड बना रहे हैं, या कोई भी चीज़ मिट्टी गिट्टी वगैरह लेके जा रहे हैं। सो ऑल दीज टाइप्स ऑफ वर्क्स आर इम्पॉर्टेंट। उनमें आप मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, मेहनत नहीं करने, अनडिग्निफाइड जॉब्स क्या होते हैं जिसमें चेन स्नैचिंग होती है, जिसमें पर्स चुरा लेते हैं, जिसे किसी को लूटना होता है। सो वो अनडिग्निफाइड है। ऐसा काम करने वालों की बरकत भी नहीं होती, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। इसीलिए डिग्निटी ऑफ लेबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए महात्मा गांधी जी बोलते हैं कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सब काम बड़ा अच्छा होता है। चाहे वो टॉयलेट क्लीनिंग क्यों ना हो, अगर मैं अपने से कर रहा हूँ तो मेहनत कर रहा हूँ, और कोई काम छोटे या बड़े के हिसाब से नहीं छोड़ना चाहिए, सोचना चाहिए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इट इज़ रॉन्ग एटीट्यूड ऑफ मैन अगेंस्ट वुमेन व्हेन दे हैव एग्जिस्टेड इन इंडिया। Girls and women are not given equal opportunity in education, career and political system, but in changing slowly, women are claiming their rightful place in the society. बहुत पहले ऐसा था कि औरतों को रॉन्ग एटीट्यूड था, औरतों को इज्जत नहीं थी, उनको इक्वल प्ले, इक्वल वर्क के हिसाब से काम नहीं मिलता था, और बहुत भेदभाव होता था उनके साथ। तो वो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन में आता है। अब समय बदल गया है, चेंजिंग स्लोली। अब औरतें पूरी सोसाइटी आज कंधे से कंधा मिलाकर औरतें काम कर रही हैं। ऑल इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द चेंजिंग ट्रेंड इन ऑक्यूपेशन इज़ इंक्रीजिंग, एंड ये इंक्रीज जो है वो औरतों का पार्टिसिपेशन के साथ। अभी औरतें लगातार हर फील्ड में काम कर रही हैं, हर ऑक्यूपेशन में आपको औरतें दिखेगी। और व्हेन द रूरल एरियाज़ में भी अगर आप ध्यान दें तो अब बहुत सारी रूरल एरियाज से सिटीज़ माइग्रेट कर रही हैं in search of occupation, and the women look after the responsibility of the farming and related activities. औरतें जो घर भी संभालती हैं, फार्मिंग भी संभालती हैं, प्लस जो भी फार्मिंग से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी करती हैं, बट their work is not respected and they are not given the same wage as they are given by men. हाँ, आप गांव में देखेंगे कि औरतों को उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना मर्दों को मिलता है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है कि औरतों का कोई काम ही नहीं है, वो जो करती हैं उनका कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए उनको वेजेस भी कम मिलती है। अब समय बदल गया है, और दो 50% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडियन ये डू नॉट गेट इक्वल शेयर इन ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ एंड पार्लियामेंट। ये जो औरतों को बराबर दर्जा नहीं दिया जाता है और इक्वल अनइक्वल ट्रीटमेंट किया जाता है, ये अनइक्वल ट्रीटमेंट को जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। ये अनइक्वल ट्रीटमेंट है, औरतों के साथ बहुत गलत बात होती है, औरतों में भेदभाव होता है, तुम ये नहीं कर सकती, तुम वो नहीं कर सकती, तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम वैसा नहीं कर सकते। ये जो बातें होती हैं ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, जेंडर बायस्ड हैं। ओके, एंड मेनी वुमेन आर टेकिंग अप ऑक्यूपेशन सो फार एज लेबल्ड एज मेल ऑक्यूपेशन। ये बहुत अच्छी बात बोली गई है कि पहले ऐसे काम होते थे जो बोलते थे कि ये औरतें कर नहीं सकती। देखिए ट्रैक्टर चला रही, देखिए कल्पना चावला हमारी एस्ट्रोनॉट थी और स्पेस में गई थी। ये देखिए इंदिरा नूई और नंदा कोचर
और ये देखिए हमारे मिलिट्री में और पायलट बनी हैं, और इवन पुलिस में, हर जगह, खेल में अब तो औरतें आगे ही बढ़ रही हैं। यहाँ तक कि प्रेसिडेंट भी हमारी एक बार मैडम हमारे पाटिल जी हैं थी, और उन्होंने काफ़ी कुछ, हमारे इंडिया में काफ़ी तरक्की हुई है जब से औरतें आगे बढ़ी हैं। और अभी प्राइम मिनिस्टर भी थी हमारी इंदिरा गांधी। तो अब ऐसा कुछ नहीं कि औरतें कोई काम नहीं कर सकती, जो मर्द ही कर सकते हैं, मर्दों से आगे बढ़ गई हैं, उनसे अच्छा काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, बच्चे भी संभालती हैं, प्लस काम भी कर लेती हैं। इन औरतों का अभी देखिए, वुमेन आर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, कंसल्टेंट्स, पायलट्स, हर जगह। और इन रूरल एरियाज वुमेन आर मूविंग इन स्पाइस, वर्किंग इन स्पाइस, मैच बॉक्स एंड अगरबत्ती फैक्ट्रीज, इन सब में भी काम करती हैं औरतें, है ना। ऐसा नहीं है कि औरतें घर का ही सिर्फ काम कर पाती हैं, घर भी संभाल लेती हैं बेहतर तरीके से, और अपने बच्चों को, पढ़ाई को, सबको। दे हैव बीन गिवन टेकन अप जॉब्स एज हेल्थ वर्कर, टीचर एंड पंचायत में। आजकल पंचायत में, टीचर्स में ज़्यादातर औरतें ही ऑक्यूपेशन में हैं, एंड हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी। एंड दे आर मेकिंग अप एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। एंड आज देश की तस्वीर बदलने में औरतों का बहुत बड़ा योगदान है। रिसर्च ये बताता है कि द मेजोरिटी ऑफ वुमेन वर्क इन रूरल एरियाज आर सेमी लिटरेट और सेमी लिटरेट। सेमी लिटरेट मीन्स कम, इलिटरेट मीन्स कम बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं, सेमी मीन्स थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखी जानते हैं। द गेटिंग एजुकेशन, आजकल पढ़ाई भी की जा रही है, तो उन लोगों के लिए स्कूल्स खोले जा रहे हैं ताकि वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें। एंड इन औरतों को अब आगे बढ़ाया जा रहा है, और हाईली रिस्पॉन्सिबल जॉब्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब बहुत सारी जगह ये साबित हो गया है कि औरतों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है। दे मच बेटर and they are much advanced than men. So with this note I complete the chapter, and if you have any doubt you can ask me, and that's all.